good morning to all my dear students. We are in our previous class we have started the chapter 4 reproductive health, and we learned about strategies and plannings, what is reproductive health and population explosion. Next, to check the population, we have to adopt some birth control methods or contraceptive methods. Now in today's video we are going to study about the various birth control methods available. What is contraceptive methods? हम आज बात करेंगे किन की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और वी कैन से और बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस. बर्थ कंट्रोल devices. These are the devices which regulates pregnancy by preventive measures. These devices regulates pregnancy by preventive methods or by preventive methods to check or limit the number of offsprings. ये डिवाइसेस हैं जो प्रेगनेंसी रेगुलेट करती हैं बाय प्रिवेंटिव मेथड्स टू चेक द और लिमिट द नंबर ऑफ प्रेगनेंस ऑफस्प्रिंग्स के नंबर्स को लिमिट करते हैं. What is an ideal contraceptive? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो या आइडियल बर्थ कंट्रोल डिवाइस जो है वो क्या होती है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो इसकी. फर्स्ट, इजीली अवेलेबल. ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि एक बर्थ कंट्रोल डिवाइस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स: इजीली अवेलेबल, लेस और no side effects, reversible, fourth, should not interfere with the sexual desire of user. User friendly. तो क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो? इजीली अवेलेबल हो, लेस और नो साइड इफेक्ट्स हो, रिवर्सिबल हो, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर के साथ इंटरफेयर ना करे, यूजर फ्रेंडली हो, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड प्राइवेसी टू द यूजर को प्राइवेसी भी प्रोवाइड. अब ये बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस जो है काम कैसे करती हैं? हाउ डू दे वर्क? इनका वर्किंग एक्शन क्या है? हाउ डू दीज वर्क्स? ये काम कैसे करती हैं? इनकी देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द वर्किंग. फर्स्ट इज द प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट. स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ही प्रिवेंट कर देगी. स्पर्म ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक. सेकेंड, इनहिबिट ओव्यूलेशन. इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी. एंड थर्ड इज द अवॉइड इम्प्लांटेशन, कि अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है, फर्टिलाइजेशन अकर, देन देयर इज नो इम्प्लांटेशन अकर्स. तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी. 3 तरीके से काम करता है. स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, या ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन को अवॉइड करेगा. देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस. बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड. फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड. There are various types of these contraceptive methods, natural methods.
barrier methods. Third one is the chemical methods. Fourth one is the intrauterine devices. Intrauterine devices. Fifth, oral contraceptives. Injectables. Implants. Surgical methods. Before surgical methods, hormonal injections, or we can say injectables, implants, and surgical methods. These are the various methods of birth control devices: natural method, barrier method, chemical methods, intrauterine devices, oral contraceptives, injectables, implants, and surgical methods. Now we are going to study these methods one by one. First of all, we are talking about natural methods. सबसे पहले हम बात करेंगे natural methods की कि natural methods कौन से हैं. There are three types of natural methods. इन natural methods की three types हैं. First one is the periodic abstinence. For this adoption of the natural method को adopt करने के लिए we have to know about the menstrual cycle. हमें menstrual cycle के बारे में पता हो. What is menstruation, when ovulation occur, what is the fertile window क्या है, ovulation कब होती है. तो we know that ovulation occurs on 14th day. हमें ये पता है ovulation कब होती है. 14th day जो होता है menstrual cycle का, if it is 28 days menstrual cycle, then on 14th day ovulation occurs. Sperm, it alive for 1 to 3 days. Ovum की बात करें, it alive 1 to 2 days. So in this method, avoid sexual intercourse during 10 to 17 days of menstruation. इस मेथड में क्या किया जाता है? Avoid sexual intercourse during 10 to 17 days of menstruation. to 17 days है जो menstruation के, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं. बिकॉज 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है 2-3 दिन पहले या 2-3-4 दिन उसके बाद. दिस इज द फर्टाइल विंडो. 10 to 17 डेज का जो टाइम पीरियड है वो फर्टाइल विंडो है, जिसमें ओव्यूलेशन होगी. 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है तो 3 डेज तक अलाइव रहता है, 17 डेज तक वो अलाइव रहता है. ये 14 to 21 डेज तक भी हो सकती है. दिस फर्टाइल विंडो इज मे बी 14 to 21 days of menstruation. 14 से 21 days. Okay, not 10 to 17, but it is 14 to 21 days of menstruation. Fertile. This 14 to 21 days, this 7-week period is the fertile window in which chances of fertilization is very high, जिसमें fertilization के chances बहुत होते हैं. तो avoid sexual intercourse during this 1 week before and 1 week after menstruation is safe. 1 week before and 1 week after menstruation is safe. But this method can be adopted only in the case if ये method सिर्फ इस केस में अडोप्ट किया जा सकता है if the female or male having the proper नॉलेज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉपर नॉलेज हो कि ओव्यूलेशन कब होती है, फर्टाइल विंडो क्या, इन चीजों के बारे में प्रॉपरली पता हो, कितने दिन तक स्पर्म अलाइव रहता है, हाउ मेनी डेज ओव्यूम अलाइव, तो ही इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं.
Next is the second method of natural method is the withdrawal method. Second method is the withdrawal or coitus interruptus. In this withdrawal method, male withdraw his penis before ejaculation from the female's genital tract. इस मेथड में क्या है? Male withdraws his penis from female's before insemination or before ejaculation. Ejaculation से पहले ही मेल पेनिस विड्रॉ कर ले फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से, तो स्पर्म फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट नहीं होंगे, फीमेल की बॉडी में स्पर्म डिपॉजिट नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. दिस इज द सेकंड मेथड. दिस इज ऑल्सो नेचुरल मेथड बिकॉज नो आउटर साइड थिंग्स आर यूज्ड. कोई भी बाहर की चीजें, कोई भी बाहर का मटेरियल यहाँ यूज नहीं हुआ है. तो ये है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस मेथड. बट देर इज चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड. इस मेथड के भी फेलियर होने के चांसेस है बिकॉज इन इनिशिएशन स्टार्टिंग में सम लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इज आल्सो रिलीज्ड. कुछ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज होता है दैट आल्सो कंटेन स्पर्म, जिसके अंदर भी स्पर्म्स होते हैं एंड दैट दे कैन क्लोज फर्टिलाइजेशन. वो फर्टिलाइजेशन क्लोज करते हैं. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विल पावर ऑफ द मैन. ये मैन की विल पावर पे भी डिपेंड करता है. Third method is the lactational amenorrhea. Third method is the lactational amenorrhea. Amenorrhea यानी कि absence of menstruation. लैक्टेशनल एमिनोरिया. लैक्टेशन हमें पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग. ड्यूरिंग व्हेन अ fetus fully feeds its mother, then there is absence of menstruation. तो menstruation की absence होती है because no ovulation takes place. When a mother feeds her fetus fully, then there is no menstruation occurs because there is no ovulation occurs. But this पीरियड इज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ. लेकिन ये जो पीरियड है मैक्सिमम जो है ये 6 मंथ तक इफेक्टिव होता है. और ये भी हर किसी फीमेल के केस में नहीं होता है. सम फीमेल्स में स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो. ओके, दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल नेचुरल मेथड. सेकेंड मेथड इज द बैरियर मेथड. सेकेंड मेथड हमारा आता है बैरियर मेथड. अब बैरियर के नाम से ही पता चलता है कि द बैरियर मेथड्स दीज अवॉइड फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. बैरियर प्लेस कर दिए जाएंगे, कुछ बैरियर्स लगा दिए जाएंगे विच प्रिवेंट्स और विच प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. बैरियर मेथड में क्या होगा? स्पर्म की और ओवम की फिजिकल जो मीटिंग है उसको अवॉइड किया जाएगा बाय यूजिंग ऑफ वेरियस डिवाइसेस लाइक कॉमनली यूज्ड डिवाइस यूज्ड बाय द मेल कॉन्डोम. दीज आर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स. ये रबर या लेटेक्स के बने हुए होते हैं, यूज्ड टू कवर द पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स. दीज आर यूज्ड टू कवर द पेनिस बिफोर sexual intercourse. These are made up of rubber or latex. These are used to cover the penis before sexual intercourse. Why these are used? Semen is collected in these devices. Semen जो है वो इन condoms के अंदर ही कलेक्ट हो जाएगा and that does not reach to the female reproductive tract. वो female reproductive tract तक नहीं पहुंच पाएगा. तो एक तरह से ये बैरियर की तरह काम करते हैं क्योंकि स्पर्म जो है उसी में कलेक्ट हो जाएंगे. दूसरा इफेक्टिव चीज ये है इसकी कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडीज. ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रिवेंट करता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज.
यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं विच आर ट्रांसफर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन डिजीज से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड कॉमनली यूज्ड ब्रांड ऑफ द कॉन्डोम्स इज द निरोध। इट इज द कॉमनली यूज्ड ब्रांड। नेक्स्ट, condoms for the females are also available. Female condoms are also available in the market which are used to cover the cervix or vagina, and the condoms used by the females, these are known as femidoms. These are the condoms used by females. Okay, ये तो मेल के लिए था। अगर हम बात करते हैं, देयर आर सेवरल डिवाइसेस, बैरियर डिवाइसेस आर आल्सो यूज्ड बाय द फीमेल्स, एंड दे यूज्ड बाय, जो फीमेल के लिए यूज की जाती हैं वो है लाइक डायाफ्राम, वोल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स। These devices are inserted in the female reproductive tract before sexual intercourse. ये जो डिवाइसेस हैं, डायाफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल कैप्स, ये डिवाइसेस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले फिट की जाती हैं। These devices also prevent physical meeting. ये भी स्पर्म और ओव्यूम की फिजिकल मीटिंग को, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने से रोकती हैं, स्पर्म को अंदर जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती हैं। तो क्या है कि these are also fitted in the, they remain fitted in the place after 6 hours after the sexual intercourse. ये उसी जगह पर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद तक भी वहीं फिट रहती हैं। इजीली रीयूजेबल हैं, इजीली उनको रीयूज भी किया जा सकता है। डायाफ्राम जो है ये इस तरह की शेप के होते हैं, ये भी लेटेक्स या रबर की बनी हुई कवरिंग्स होती हैं, यूज टू कवर द यूट्रस, एंट्रेंस ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की एंट्रेंस है, डायाफ्राम जो है यूट्रस की एंट्रेंस को कवर करता है। वोल्ट्स जो है, दीज आर यूज टू कवर द सर्वाइक्स, ये सर्वाइक्स को कवर करती है। ये भी वही रबर या लेटेक्स की, रबर वगैरह की बनी हुई डिवाइसेस होती हैं। सर्वाइकल कैप जो है ये हेमिस्फीयर की फॉर्म में होती हैं, इनकी शेप होती है हेमिस्फीयर की फॉर्म में, इस तरह से। These are fitted over vaginal vault, fitted in vaginal vault over cervix. Okay, there is no side effects of these devices. इन devices के कोई side effect नहीं, easily reusable है, but these have to remain in the place of 6 hours after the ejaculation or after the sexual intercourse. Next devices, after barrier methods, there are some chemical methods also. कुछ chemicals भी ऐसे use होते हैं which are used to as contraceptive methods. Chemical methods भी हैं जो contraceptive methods की फॉर्म में यूज होते हैं। और ये जो डायाफ्राम, वोल्ट, सर्वाइकल कैप्स है, इनके साथ अगर केमिकल मेथड्स भी यूज किए जाएं तो ये उनकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर देते हैं। केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे फोम है, टैबलेट फोम है, फोम की है, क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फोम, क्रीम्स, जेलीज, इनकी फॉर्म में बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिनके अंदर मेनली प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट। These are the chemicals which are used as a barrier method, as a chemical method for the prevent reproduction or for the as a contraceptive. Chemical methods भी यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर मेनली लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये कुछ केमिकल्स उनके अंदर होते हैं। ये इमोबिलाइज कर देते हैं स्पर्म्स को किल कर देते हैं।
These are used to kill the spawns. ये क्या कर देते हैं, ये chemicals जो हैं ये spawns को kill कर देते हैं. These are used by the females and these kills the spawns. ये spawns को kill कर देते हैं. Next method after the chemical method, next is the intrauterine devices. Next method is the intrauterine devices. यानी कि these are fitted in uterus. कहाँ फिट की जाती है? These are fitted in uterus by professional doctor or nurses, expert doctor or nurses. ये यूट्रस में फिट की जाती हैं. Fitted in uterus by expert doctors and nurses. Expert जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, उनकी हेल्प से ये फीमेल के यूट्रस में फिट की जाती हैं. इनमें भी कई टाइप्स के यूटेराइन डिवाइसेस हैं. लाइक सम आर मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, जिसमें कोई केमिकल नहीं है. सम आर नॉन मेडिकेटेड. सम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर हार्मोन रिलीजिंग. Some devices are copper releasing. Non-medicated में आता है light loops. Hormone releasing, progesterone, LNG20. Copper releasing devices, copper T, copper 7, multi-load 375. These are the commonly used devices. Copper T, copper 7, multi-load 375. These are copper releasing devices. What do these intrauterine devices? These intrauterine devices increase phagocytosis of sperm. Increase phagocytosis of sperm within the uterus. Of sperm within the uterus. ये क्या करती है यूट्रस के अंदर? फैगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म्स को खत्म कर देती है. कुछ सेल्स होते हैं जो उनको एंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो दीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस. यूट्रस के अंदर स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस हो जाता है, स्पर्म को खत्म कर देती है. जो हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस makes uterus unfit for implantation. Makes uterus unfit for implantation.